हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार आपके सामने आईआईटी जेईई मेंस एडवांस का फंक्शन चैप्टर लेकर आया हूं। आज फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। तो देखिए जरा, फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज फंक्शन? मोर देन one element of a can be related with single element of b but one element of a cannot related more than one element of b। मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी। इसका दूसरा टॉपिक है बच्चों, डियर स्टूडेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए कैन बी रिलेटेड some element of B is known as function such that f from A to B for implied that f of A is equal to B। ये आपका मेन डेफिनेशन है कि मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए कैन बी रिलेटेड विद सिंगल एलिमेंट ऑफ बी बट वन एलिमेंट ऑफ ए कैन नॉट रिलेटेड मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी। ईच एलिमेंट ऑफ ए can be related some element of b is known as function such that f from a to b for implied that f of a is equal to b। तो बच्चों, डियर स्टूडेंट, इज नोन एज फंक्शन f of a is equal to b। This is domain, this is codomain। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 is related 5, 2 is related 5, 3 is related 6, 4 is related 6, 8 is related 7। तो therefore this is function f of a, each element of a can be related single element of b। तो therefore 1 is related 5, 2 is related 5। तो this is written as f of 1 is equal to 5, f of 2 is equal to 5। तो therefore more than one element of a can be related in single element of b। तो there such that f of 3 is equal to 6, f of 4 is equal to 6, f of 8 is equal to 7। hence f is a function। f is a function। the element of each the element of a image of B।
here the element of B is image of A. Image of A. Each element of B image of A. The element of A is pre-image of B. तो A is said to be pre-image, तो B is said to be image. तो B के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं. किसका? A का इमेज है. और ये जो का एलिमेंट जो है B का क्या कहलाता है? प्री इमेज कहलाता है. तो देयरफॉर दिस इज प्री इमेज, दिस इज इमेज. तो इमेज इज सेड टू बी 5 इज इमेज, 1 2 इज इमेज 5. तो 5 1 2 का इमेज 5 है, 3 4 इज इमेज 6, 8 इज इमेज 7. डोमेन कोडोमेन A B F 1 2 3 4 5. 1 is related 5, 2 is related 5, 3 is related 5, 4 is related 5. So this is F is a function. F is a function. Because more than one element of A can be related single element of B. दूसरा एग्जाम्पल, फॉर सेकंड एग्जाम्पल, बच्चों यहाँ 1 लिखा, 5 6 7. 1 is related 5, 2 is related 6, 1 is related 5, 1 is related 6, 1 is related 7. A B. F is not function. F is a not function because one element of A can be related more than one element of B. This is F is not function. So therefore F is not function. So therefore this is more than one element of A can be related single element of B. Hence F is a function. This is not function. B take F of X is equal to plus minus 1 comma 2 plus minus 2 comma 3 plus minus 3 comma 4. If is a function or not. This is एग्जामिनेशन ऑफ IIT पूछ रहा है. ये IIT का क्वेश्चन है, ये फंक्शन है कि नहीं है. अब आपके सामने इस क्वेश्चन को ऐसे दे दिया. तो अब यहाँ से बच्चों हम लोग करते क्या हैं? पहला नंबर डोमेन, इसके बाद कोडोमेन. तो देयरफॉर A B 1 minus 1 2 minus 2 3 minus 3 2 3 4. 1 is related to minus 1 is related to 2 is related 3 minus 2 is related 3 3 is related 4 minus 3 is related 4. So hence we get more than one element. This is more than one element of A can be related single element of B. मतलब इसका 2 एलिमेंट सिंगल एलिमेंट B का रख रहा है, ये भी इससे रिलेशन रख रहा है, ये भी दोनों इससे रिलेशन रख रहे हैं. तो हेंस F इज आ फंक्शन. F इज आ फंक्शन. तो हेंस दिस इज फंक्शन. मतलब क्या होगा? फंक्शन होगा. अब ये बी टेक इन ग्राफिकल अप्रोच. इसको हम ग्राफ के मेथड से कैसे समझाते हैं? अब ये देखिए फंक्शन है, इसको ग्राफ विथ पे ले जाते हैं. अब ग्राफ को हम लोग कैसे इसको शो करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज x
axis and second element is represented at y axis. First element we take x and y axis. Y o y dash, x dash o x. 1 2 3, -1 -2 -3 x डैश. यहाँ पर बेटा 1 2 3 4. तो 1 इज रिलेटेड टू, 1 को कहाँ तक ले गए, 2 तक ले गए. -1 इज रिलेटेड टू, तो देयरफॉर दिस इज इमेज 1, 2, दिस इज इमेज -1, 2. तो 2 इज रिलेटेड 3, 2 इज, तो देयरफॉर दिस इज यहाँ 2, 3, देयरफॉर -2, 3. तो यहाँ से बेटा मेरे 3 इज रिलेटेड 4, 3 को 4 के टॉपिक पे ले गए और -3 को यहाँ से लेकर के सीधे रहेगा यहाँ से आता है और -3 इज रिलेटेड 4 यहाँ पर पहुँचा. तो देयरफॉर दिस इज पॉइंट 3, 4, दिस इज पॉइंट -3, 4. हेंस बी टेक ज्वाइन टू द लाइन. B take join to the line. So if any line parallel to y axis, B can draw the line segment cut B one point. This is function. If any line parallel to y axis cuts the graph should be 1 point, then graph should be function. Then graph should be function. तो बच्चों ईच, अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं इन ग्राफिकल अप्रोच नोट में इन ग्राफिकल अप्रोच if any line parallel to y axis cuts the graph should be 1 point. Is known as function. Other not function. तो बच्चों हम ग्राफ देख करके बता सकते हैं आई कैन सी द ग्राफ ए चेक टू द फंक्शन आर नॉट फंक्शन. we take the graph, other graph. For example, parabola y square is equal to 4af. So therefore this is parabola, vertex should be 0 0, this will be directed, this will be focus a, 0. तो हमें ये बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं फंक्शन है. अब आप लोग देखिए y एक्सिस के पैरेलल इन लाइन को मैं ड्रा कर रहा हूं तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो दिस इज इंटरसेक्ट इफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कट्स द कर्व शुड बी 2 पॉइंट, देन कर्व इज नॉट फंक्शन. तो पैराबोला हेंस नॉट लिखा जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज नॉट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल दूसरा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. इस समय y की डिग्री 1 है, इसके माने इस बार इमेज y के तरफ बनेगा. यहां से देखिए दिस इज ग्राफ शुड बी y o y डैश x डैश o x. एनी लाइन पैरेलल टू वन एक्सिस, so therefore this graph should be 1 point, cuts 1 point, hence
1 point is cuts 1 point, then y x square is equal to 4ay is a function, is a function, is a function. तो we take the equation of circle, equation of circle. आप लोग सर्कल का इक्वेशन जानते हो बेटा। सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेंटर शुड बी 0 0, रेडियस ए। तो यहां से बेटा आपके सामने सर्कल, दिस इज सर्कल, रेडियस ए। अब वाई वाई ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ एक्स। इफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द ग्राफ शुड बी 2 point, then circle is not function, then circle is not function. तो इसको क्या लिखा जाएगा? सर्कल इज नॉट फंक्शन, सर्कल इज नॉट फंक्शन। अदर एग्जांपल, एक्सपोनेंशियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स। देखिए इस सब को मैं ग्राफ आपके सामने, स्पेशल फंक्शन जब का ग्राफ के टॉपिक रहेगा उसमें मैं आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो यहां से देखिए यक्स ओ यक्स डैश, दिस इज ई एक्स एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। इस समय एक्सपोनेंशियल देखिए, इफ एनी लाइन पैरेलल टू वन पॉइंट देन ग्राफ शुड बी फंक्शन। तो हेंस ई एक्स ई टू द पावर एक्स इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन which because if any line parallel to y-axis cuts the graph should be 1 point. Circle is not function because if any line parallel to y-axis cuts the circle is 2 point. This is not function. Circle is not function. Exponential is a function. So hence we take other example, log x, logarithm, log x देखिए बेटा, एफ ऑफ एक्स इजकल टू लॉग एफ। तो ये देयरफॉर वाई ओ वाई डैश एक्स डैश ओ एक्स, फंक्शन आपके सामने, दिस इज लॉग एक्स वाई डैश ओ वाई। अब लॉग एक्स देखिए, वाई के पैरेलल कहीं भी ड्रा कर रहे हैं तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो दिस इज लॉग एक्स बेस ई। अब इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं कि log x इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन। नेक्स्ट आपके सामने एग्जांपल, नेक्स्ट आपके सामने एग्जांपल, y इजकल टू k या x इजकल टू k, x इजकल टू k। तो देखिए k की वैल्यू y o y डैश x डैश o x, फॉर दिस इज k पॉइंट, k इज एनी रियल नंबर, k इज एनी रियल नंबर। तो k x इजकल टू k। अब देखना है कि क्या x इजकल टू k फंक्शन है कि आर नॉट फंक्शन है। तो यहां से इसके बीच में कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट है। तो हेंस x इजकल टू k इज नॉट फंक्शन because any line parallel to y axis cuts the infinite point, then x इजकल टू k is not function, x इजकल टू k is not function। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ को देख करके भी बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ फंक्शन है, कौन सा ग्राफ फंक्शन नहीं है। अब नंबर 2 पे टॉपिक आता है आपके, जो आईआईटी क्वेश्चन में पूछा जाता है बच्चों, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ये टॉपिक आपके सामने। इफ number of element a is equal to m and number of element b is equal to n, then number function। तो we take
नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन, पहले फार्मूला लिख दे रहा हूं, n टू द पावर m। कहना चाह रहा हूं यहां से बी टेक से डोमेन कोडोमेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से 1 इज रिलेटेड। अब 1 देखिए कितने टाइम जा सकता है। 1 आपके सामने नंबर ऑफ एलिमेंट m, आपके सामने 1 जो है कितने तरीके से रिलेशन बना सकता है। तो एक तरीके से जा सकता है, दो तरीके से जा सकता है, 7 से भी बना सकता है, 8 से भी बना सकता है, 9 से भी बना सकता है, 10 से। इस प्रकार इसे बनाने का जो तरीका हुआ बेटा 3 4 5 6 हो गया। बात हुई फंक्शन के। फंक्शन का रहा है मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए, 2 भी 5 से बना सकता है, क्योंकि बी का फंक्शन आपके सामने बी टेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां से यदि 1 इससे बनाया है तो 2 भी 5 से बना सकता है। देयरफॉर तो 2 भी 6 से भी बना सकता है, 2 7 से भी बना सकता है। इस प्रकार 2 को जो बनाने का तरीका हुआ 6 हुआ। 2 इससे भी रिलेशन बना सकता है, इससे भी बना सकता है, इससे भी कोई एक रिलेशन 2 बना सकता है। तो इसको बनाने का तरीका हुआ 6। 3 भी इसी प्रकार आपका 5 से बना सकता है। तो बताओ 3 का बनाने का तरीका हुआ 6। और 4 भी देखिए इसी प्रकार 4 का 6। तो 4 भी इस 5 से माने कितने तरीके से बना सकते हैं, ये आपके 6 तरीके से फंक्शन को बना सकते हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट B इज इक्वल टू 6। तो हेंस नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, देयरफॉर 6 टू द पावर 4। तो 6 बताओ n कितने हैं, 6 हैं। n कितने हैं, 6 हैं। और m कितने हैं, m एलिमेंट कितना है, 4 है। तो देखिए 6 टू द पावर रिजल्ट कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक। अदर एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं, अदर एग्जाम्पल इसी प्रकार रख रहे हैं। इफ क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है आपके सामने, इफ क्वेश्चन आपके सामने नंबर ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट B इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ B इज इक्वल टू 7। तो फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन। ये है आपके सामने क्वेश्चन, IIT क्वेश्चन आपके सामने, IIT का क्वेश्चन है। यहां से देखिए IIT क्वेश्चन, नंबर ऑफ फंक्शन, व्हाट इज नंबर ऑफ फंक्शन, क्या होगा नंबर ऑफ फंक्शन। बस एक लाइन में आप आंसर दीजिए, एक लाइन में आंसर दीजिए। इस समय नंबर ऑफ एलिमेंट है m, नंबर ऑफ एलिमेंट B है n, तो n कितना है, 7। तो अब इसी को लिख सकते हैं आंसर, एक लाइन में आंसर बच्चों मेरे आंसर में नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, 7 टू द पावर 5। याद करने के लिए बच्चों मेरे कोडोमेन टू द पावर द एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल नोट में मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, जो ध्यान में नहीं पहुंच पा रहे हैं बच्चे मेरे, नंबर ऑफ फंक्शन नोट में सबसे अच्छे तरीका, द एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट B, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट A। याद रखना B के पास नंबर A बेस में होगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट B वाला होंगे वो बेस पे होगा, और जो A का होगा वो डिग्री पे होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 7 टू द पावर 5। आंसर फट दे आंसर मारिए। अब जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इफ
नंबर ऑफ एलिमेंट ए, या ए इक्वल टू ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5, और एंड बी का एलिमेंट मैंने लिख दिया 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फाइंड नंबर ऑफ फंक्शन, फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन। अब इसमें नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे? अब आप लोग सीधे निकाल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट बी इज इक्वल टू, जरा बताइए जूम करते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देयरफॉर दिस वैल्यू 3 3 6 टू द 8। अब फटाफट का आंसर दीजिए, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन गए? एलिमेंट ऑफ, देखिए एलिमेंट ऑफ बी कितना है 8 टू द पावर कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट बी एक एलिमेंट कितना है 5, तो माने 8 टू द पावर 5। दिस इज रिजल्ट आपके सामने बेटा मेरे, यही रिजल्ट है, यही आपका नंबर ऑफ फंक्शन है। तो फॉर एग्जाम्पल ये सब क्वेश्चन जरा ध्यान में रखिएगा, आपके आईआईटी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बस यही टॉपिक आपसे पूछ लेता है कि कहाँ से नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या होता है, कैसे निकलता है नंबर ऑफ वन फंक्शन। तो कोडोमेन, द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ रेंज, एलिमेंट ऑफ रेंज। तो अब यहीं से बच्चों मेरे, ये आपके सामने मैं फंक्शन का टॉपिक खत्म कर दिया। तो गुड बाय। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।